Hello everyone, welcome to our online classes. Student, today's lecture is for class 10. In this lecture, we will continue our same chapter, light reflection and refraction. Okay student, in this lecture, we will learn about some basic key terms related to our mirrors. Student, these basic key terms are very useful in this chapter and their knowledge is very useful for the image formation by these two mirror, concave and convex mirror. Okay student, ये जो बेसिक की टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं, इनके नॉलेज के बिना हम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन को फॉर्म नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स इमेज फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ दीज बेसिक की टर्म्स. ओके स्टूडेंट, सो लेट स्टार्ट. द फर्स्ट की टर्म is known as pole. As you can see that on the board, pole. What is pole, student? Here, pole is a point at the reflecting surface of the spherical mirror which divides it into two equal halves. It means pole spherical mirror की reflecting surface पर वह बिंदु होता है जो मिरर को बराबर दो भागों में काटता है. ओके स्टूडेंट, इट मीन्स यू कैन से दैट अ पॉइंट विच डिवाइड्स इक्वल टू हाफ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी मिरर इज नोन एज इट्स पोल. लेट्स सी वेयर इज द पोल. दिस पॉइंट इज नोन एज पोल. पोल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल P. ओके स्टूडेंट, हियर the pole is this. Okay student, now we will study about the second keyword of our spherical mirror, center of curvature. What is the meaning of center of curvature? You know very well about the center of any sphere. आप किसी भी sphere के center के बारे में जानते हैं, बिल्कुल वही. Here, center of curvature क्या होता है स्टूडेंट? आप जानते हो concave and convex mirror is a part of any sphere and every sphere has a center. The center of the hollow sphere from which our mirror is formed. मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा सेंटर किसका? स्फेरिकल मिरर का, जिससे जो किसी स्फीयर का पार्ट हो. ओके स्टूडेंट, मतलब आपका कहना ये है कि ये एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर से ये टू मिरर्स फॉर्म किए गए हैं. ये टू मिरर्स जिस हॉलो स्फीयर से भी फॉर्म किए गए हैं उस हॉलो स्फीयर का भी एक सेंटर होगा. दैट सेंटर इज नोन एज द सेंटर ऑफ curvature. Okay student, here our center of curvature is usually represented by C. The center of the hollow sphere का center जिससे the mirror is formed. It means किसी भी स्फीयर जिससे हमारा मिरर बना हुआ है उसी के ही सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड कीवर्ड. आवर थर्ड कीवर्ड is known as the radius of curvature. What is the radius of curvature? Similar to the center of curvature, the center of curvature, every sphere have a radius. हर एक स्फीयर के पास क्या होती है स्टूडेंट्स? एक रेडियस होती है और उसी रेडियस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. इट मींस द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर from which mirror is formed is known as radius of curvature.
It is represented by letter R. यहां से यहां तक की दूरी, सेंटर से लेके पोल तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। सिमिलरली सेंटर से लेके पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। ओके स्टूडेंट, नाउ come to our fourth point. Our fourth point is principal axis. What is the principal axis? A straight line, which joins center of curvature to pole. वह स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज अवर पोल एंड द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन द सेंटर टू पोल. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस. Now let us go on the fifth point. What is the fifth point? Fifth point of our mirror is focus. Focus क्या होता है students? Focus is a point on our principal axis at where all light rays which are parallel to principal axis meets after reflection or refraction or conversion and diversion. Okay students, देखिए दिस इज अवर कॉन्केव मिरर स्टूडेंट. यहां पर हम दो चीजों के बारे में और जानेंगे. वो है द सेकेंड नेम ऑफ अवर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द कॉन्केव मिरर. You can see that, suppose that this is the center and this is the pole. Similarly, आप देख सकते हो बच्चों कि कॉन्केव मिरर का सेंटर जो है वो हमेशा किधर पड़ता है? लेफ्ट की ओर. और कॉन्केव मिरर का सेंटर हमेशा किधर पड़ता है? लेफ्ट की ओर. और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर हमेशा किधर पड़ता है? राइट की ओर. Okay student, this is our pole. बच्चों, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से सनलाइट, जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, लाइट आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल ही आती है. इट मींस इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज ऑलवेज बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. These are the light rays which comes from the infinite. Infinite से आने वाली ये light rays हैं. Infinite से आने वाली light rays हमेशा principal axis के parallel ही रहती है. जब कोई light ray जो principal axis के parallel आती है वो convex mirror के द्वारा हमेशा कैसी हो जाती है बच्चों? डाइवर्ज हो जाती है. डाइवर्ज इट मीन्स इस तरह से. बट ये जो डाइवर्जन होता है वो डाइवर्जन
एक पॉइंट पर होता है। दिस इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द डायवर्जन टेक्स प्लेस। यहां पर हमने इन लाइट रेस को डॉटेड पोर्शन से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये पॉलिश सरफेस के पीछे है। आप देख सकते हो बच्चों कि कॉन्वेक्स मिरर की सतह पर जब भी सनलाइट पड़ती है तो इस तरह से पड़ने के बाद मुड़ जाती है। ये मिरर से सरफेस से ही मुड़ जाती है, इट मींस फैल जाती है। कॉन्वेक्स मिरर सारी लाइट रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ये डाइवर्जन एक पॉइंट के साथ होता है और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इट मीन्स फोकस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल पैरेलल रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज और कन्वर्ज इज नोन एज फोकस। मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पर सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं या तो कन्वर्ज होती है वहां से या फिर डाइवर्ज होती है। नाउ what happens when the sun rays falls on the concave mirror? These are the concave mirror. ये इंफिनिटी से आती हुई सनलाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट कैसी है, पैरेलल है। आप देख सकते हो ये कॉन्केव मिरर लाइट रेस को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। लेट्स सी स्टूडेंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस सनलाइट turn in this manner. So let's see here these two light rays seems to appear to meet. ये कैसी हमको नजर आती हैं, मिलती हुई नजर आ रही है। This point is known as focus. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉन्केव मिरर अपने पर पड़ने वाली लाइट को जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज इट मीन्स इकट्ठा कर देना, डाइवर्ज इट मीन्स फैला देना। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई द सेकंड नेम ऑफ कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर and the second name of our convex mirror is diverging mirror. Why convex mirror is known as the diverging mirror? Because it diverges all the sunlight which are falls on it. कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर अपने पे पड़ने वाली सारी लाइट रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। और ये डाइवर्जन एक पॉइंट के साथ होता है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, why is concave mirror known as the converging mirror? Because concave mirror converge all the sunlight rays which are fall on its surface at a point. Okay students, so that's why it is known as the converging mirror. Now the sixth point, I hope आप लोग फोकस के बारे में समझ गए होंगे कि फोकस क्या है। फोकस वह बिंदु होता है जहां पर सारी सनलाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी मिरर पर लाई करती हैं या तो कन्वर्ज होती हैं या फिर डाइवर्ज होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, you can take the screenshot of this lecture. The sixth key term is the focal length. Focal length क्या होती है स्टूडेंट्स? The length
between focus to pole. The length between focus to pole. For example, PF, ये क्या है हमारी focal length. This is our focal length, student. Okay. And the last keyword is known as aperture. Aperture क्या होता है students? The diameter of the spherical mirror is known as aperture. The diameter of the spherical mirror is known as aperture. Okay, student? So, I hope you can understand all these basic key terms. If you have any doubt about any keyword and key terms and any definition, you can ask me. Okay, student?